Hi everyone, good morning. I hope all of you will be doing well in your English learning and welcome to today's editorial. We are going to cover today's editorial, that is crossing a line on the Viksit Bharat Sankalp Yatra road show, the implications. So आज के इस एडिटोरियल में सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे आपको इसे रीड करना है, रीड करने के जो पंक्चुएशन मार्क्स हैं उन्हें कैसे आपको फॉलो करना है। साथ ही साथ इसमें हम इम्पॉर्टेंट वर्ड्स को हाईलाइट करेंगे। जो जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको आप नोट कर सकते हैं और उसका मीनिंग जान सकते हैं। एंड मैं आपको ये भी बता दूं कि हम अवेलेबल हैं टेलीग्राम पे भी, आप सर्च कर सकते हैं बेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स एंड ये आपको सारे वीडियोस वहाँ पे मिलने वाले हैं। साथ ही साथ लेट मी टेल यू कि वी हैव आर स्पोकन इंग्लिश कोर्स एज वेल। इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड टू ज्वाइन स्पोकन इंग्लिश कोर्स, so you can join our spoken English program, and we have grammar, vocabulary, pronunciation, accent training, and for more information you can call at this number. So this program will make you confident in spoken English. We have coverage from very basics as well as we have coverage of vocabulary. We let you know how to pronounce words and we also train for your accent. सो अंग्रेजी बोलने में आत्मविश्वास पाएं और आगे बढ़ करके परफॉर्म करें। आपको पीछे बिल्कुल भी नहीं रहना है। सो लेट्स प्रोसीड फॉर आर वोकैब सेशन फ्रॉम द हिंदू एडिटोरियल वोकैब सेशन। सो ये पैसेज बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दिस इज क्रॉसिंग अ लाइन, एक पर्टिकुलर सीमा का उल्लंघन की बात की जा रही है। सबसे पहले हम इस पैसेज को पढ़ करके इसके पंक्चुएशन मार्क्स को मार्क करेंगे। So whenever a heading is given to you, you will speak a bit louder and then there is subheading and after that there is content. Three things are there. Crossing a line on the Viksit Bharat Sankalp Yatra roadshow, the implications. The government should desist from politicizing the bureaucracy. The center has asked all departments to deploy officers to showcase its achievements across the country down to the village level through a road show titled Viksit Bharat Sankalp Yatra, which will run from November 20th to January 25th, 2024. To be sure, the outreach is only about achievements of the last 9 years that corresponds to the two terms of Bharatiya Janata Party that began in 2014. The campaign is conveniently timed for the Lok Sabha election, which is expected in April-May 2024. Joint secretaries, directors, and deputy secretaries will be appointed. Rath, Rath, Rath Prabharis. So this is Rath Prabharis, chariots in charge for the road show. Separately, the Ministry of Defence is setting up 822 selfie points where citizens can click themselves with a picture of Prime Minister Narendra Modi. Guidelines issued by the ministry go into great details on how to promote the work of the last 9 years. It has been directed that these selfie points should be set up at prominent locations which have maximum footfall and potential of attracting public attention. War memorials, defense museums, railway and metro stations, bus stations, airports, malls and marketplaces, schools and colleges, tourist destinations and festival gatherings are places where these points are coming up. Opposition parties led by Congress President Mallikarjun Kharge have called out the government for this brazen politicization of the bureaucracy and the military. So I hope आपको लगभग पैसेज का आइडिया लग गया होगा। अब बारी है उन वर्ड्स को अंडरलाइन करने की जो वास्तव में आपके लिए स्पेशल हैं और उनका मीनिंग आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सो क्रॉसिंग अ लाइन एक पर्टिकुलर जो लिमिट है, जो उसका उसका एक उल्लंघन हो रहा है, एक वायलेशन हो रहा है एक सीमा का। ठीक है, हर एक की एक सीमा होती है, उसका वायलेशन हो रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा रोड शो और उसके जो इम्प्लीकेशंस हैं, इम्प्लीकेशंस का मतलब है उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या है उसके ऑब्जेक्टिव्स। सो दिस वर्ड कैन बी नोटेड डाउन, दिस इज इम्प्लीकेशन। सो दिस वर्ड इम्प्लीकेट से बना है, इम्प्लीकेट वर्ब है और इम्प्लीकेशन उसी से बना है उसका नाउन। तो इम्प्लीकेट का जो मीनिंग होता है कि और इशारा करना होता है, किसी चीज़ पे फोकस करना।
सो दिस इज द वर्ड इम्प्लीकेट, जो कि वर्ब है, एंड टू इंडिकेट समथिंग, राइट, किसी चीज को इंडिकेट करना, दिस इज इशारा करना। साथ ही साथ इम्प्लीकेट का मतलब है किसी को फंसाना भी होता है, राइट। दिस इज वन मीनिंग, किसी चीज पे इशारा करना, एंड द अदर मीनिंग इज किसी चीज को फंसाना, राइट। मतलब जैसे कभी कभी हम कहते हैं कि उसने उसको फंसा दिया है, सो दिस इज टू एंट्रैप, फंसाना। नाउ इम्प्लीकेट, इम्प्लीकेट वर्ड को हम रिलेट कर सकते हैं इम्प्लीमेंट से, ठीक है। जब हम किसी चीज़ को लागू करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, तो हम उस चीज़ को शो करते हैं, एंड लागू करने में ही कई बार लोग किसी चीज़ को जब इम्प्लीकेट करते हैं तो उसमें फंस जाते हैं। इम्प्लीकेशन वर्ड इसी से बना है, इम्प्लीकेशन। सो इम्प्लीकेट का मतलब है इसमें पर्टिकुलरली उलझाओ एक तरीके से। इम्प्लीकेशन मीन्स जिन चीज़ों में आप उलझे हुए हैं, दैट इज, इसी का नाउन है इम्प्लीकेशन। वी कैन सिंपली से काइंड ऑफ एंग्जाइटी और इन्वॉल्वमेंट, एंग्शियस इन्वॉल्वमेंट, किसी चीज़ में उलझन सी होना, किसी चीज़ में कहते नहीं फसाव हो जाना, उसमें फंस जाना। जैसे कई बार हम कहते हैं कि अभी मैं काम में फंसा हुआ हूँ, आपसे बात नहीं कर सकता, तो दिस इज कॉल्ड उलझाव, या किसी चीज़ को लेकर के किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होना। सो अगर आपको इम्प्लीकेट वर्ड अच्छे से आता है तो आप इम्प्लीकेशन वर्ड अच्छे से लर्न कर सकते हैं, देर इज़ नो डिफ़िकल्टी। सो इस पूरी लाइन का जो मीनिंग है, सिंपली इसका मीनिंग है कि जो लिमिट क्रॉस हो रही है ऑन द विकसित भारत संकल्प यात्रा रोड शो, दी इम्प्लीकेशंस, उसके क्या क्या निहितार्थ हैं, उसके क्या क्या इन्वॉल्वमेंट्स हैं, उसके बारे में इस पैसेज में बताया जा रहा है। द गवर्नमेंट शुड डेजिस्ट, डेजिस्ट वर्ड इज अंडरलाइंड। डेजिस्ट का मतलब है किसी चीज से बचाव करना, किसी चीज से दूर रहना, एंड रेजिस्ट वर्ड से आप इसे रिलेट कर सकते हैं। डेजिस्ट, रेजिस्ट काफी मैच भी कर रहा है। तो डेजिस्ट का मतलब है रोक लगाना, किसी चीज को अवॉइड करना, परहेज करना। This is the word desist. This is verb. This means to resist, खुद को रोकना, to check, रोक लगाना, किसी चीज को इन्वॉल्व होने में रोक लगाना। आप desist वर्ड को resist वर्ड से ही कनेक्ट करके लर्न कर सकते हैं, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन में काफी सेम है। किसी चीज से परहेज करना, अवॉइड करना, वही इसका मीनिंग यहाँ पे आ रहा है कि सरकार को ब्यूरोक्रेसी का पॉलिटिसाइजेशन, जो राजनीतिकरण है, उससे बचना चाहिए, राइट। दिस इज व्हाट द लाइन गिवन ओवर हियर। द गवर्नमेंट शुड डेजिस्ट फ्रॉम पॉलिटिसाइजिंग द ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी इज, दैट इज नौकरशाही। वैसे आपकी इस मैटर पे क्या ओपिनियन है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा कि व्हाट यू थिंक अबाउट इट। ये पॉलिटिसाइज पॉलिटिक्स वर्ड से ही बना हुआ है, पॉलिटिसाइज करना, राजनीतिकरण करना, पॉलिटिसाइज। दिस इज बेसिकली वर्ब विच हैज बीन derived from the word politics. Politics is noun, this means राजनीति, एंड पॉलिटिसाइज मतलब राजनीतिकरण करना, राजनीतिकरण करना मतलब एक एजेंडा बना लेना पॉलिटिक्स का। दिस इज कॉल्ड पॉलिटिसाइज, पॉलिटिक्स, राजनीतिकरण करना। एंड ब्यूरोक्रेसी इज नौकरशाही, मतलब जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स के बारे में आपने पढ़ा होगा। सो here we go with the two words bureaucrat, BUREAUCRAT। कई बार इसकी स्पेलिंग में काफ़ी कंफ्यूजन होता है, तो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, आप इसको ऐसे लर्न करें, ब्यूरोक्रेट, ब्यूरोक्रेट। तो यहाँ पे ज़्यादातर स्पेलिंग में प्रॉब्लम होती है, REAU, ब्यूरोक्रेट, ब्यूरोक्रेट, उसको जल्दी में ब्यूरोक्रेट पढ़ते हैं, और वैसे इसका मीनिंग होता है स्पेलिंग आपको, एंड इसी से बना है ब्यूरोक्रेसी। सो अगेन ब्यूरोक्रेसी, दिस इज हाउ यू शुड प्रोनाउंस, दिस इज ऑल्सो नाउन।
सो दिस इज नोन एज नौकरशाही। ये जो सिस्टम है इसे नौकरशाही अंग्रेजी में कहते हैं, और ब्यूरो वर्ड से आप इसे रिलेट कर सकते हैं, जैसे ब्यूरो चीफ आपने सुना होगा। आइए आगे पढ़ते हैं, और पैसेज बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आज की जो समय की जो समस्या है उसको हाईलाइट किया जा रहा है। द सेंटर हैज़ आस्क्ड ऑल डिपार्टमेंट्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यूज़ है। अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग की बात करें तो यहाँ पे आस्क टू का यूज़ आप सीख सकते हैं, किसी से काम के लिए कहना। ये आप यहाँ पे ग्रामर का एक टॉपिक ले सकते हैं, ग्रामर का आस्क टू। आस्क के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, जिस ऑब्जेक्ट की बात की जा रही है, जिससे आप उस काम को करने के लिए कह रहे हैं, एंड देन टू आएगा, एंड टू के बाद वर्ब आएगा। ऑब्वियसली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो यहाँ से एक स्ट्रक्चर आपको ग्रामर का मिल जाता है जिसे आप सीख सकते हैं, किसी से काम के लिए कहना। ये स्ट्रक्चर आपको सिखाता है कि आप किसी से अगर काम के लिए कहते हैं तो यहाँ से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, किसी से काम के लिए कहना। जैसे आपने कहा कि मैंने अपने भाई से जेई की प्रिपरेशन के लिए कहा, तो इसका सेंटेंस बनेगा आई आस्क्ड माई ब्रदर टू प्रिपेयर फॉर जेई। मैंने अपने दोस्तों से न्यूज़पेपर रीड करने के लिए कहा, आई आस्क्ड माई फ्रेंड्स टू रीड न्यूज़पेपर एवरी डे। तो आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। मैंने अपने दोस्तों से न्यूज़ पेपर रीड करने के लिए कहा। सो दिस इज सिंपली आई आस्क्ड माई फ्रेंड्स टू रीड न्यूज़पेपर एवरी डे। मेरे टीचर ने मुझसे इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हाईलाइट करने के लिए कहा। मेरे टीचर ने मुझसे इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हाईलाइट करने के लिए कहा। सो here we simply can say my teacher asked me to highlight important words। सो न्यूज़पेपर रीडिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये वास्तव में आपको एक इंटरेस्टिंग यूसेज मिल गया है जिसे आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स में अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, और इस पर आप सेंटेंसेस बना करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। तब लगेगा कि हाँ, वास्तव में आप न्यूज़पेपर रीड करते करते आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को भी स्ट्रेंथन कर रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सीधा मीनिंग वही आ रहा है, द सेंटर हैज़ आस्क्ड ऑल डिपार्टमेंट्स टू डिप्लॉय। डिप्लॉय का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए लगाना, काम पे लगाना, राइट। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ डिप्लॉय। सो केंद्र सरकार ने सभी विभागों को 20 नवंबर से 25 जनवरी 2024 तक जो यात्रा चलने वाली है उसके लिए लगाया गया है, तैनात किया गया है। सो दिस इज द वर्ड डिप्लॉय, एंड डिप्लॉय वर्ब है, इसी से बना है डिप्लॉयमेंट। आई होप डिप्लॉयमेंट वर्ड से भी आप परिचित होंगे, मतलब किसी को तैनात करना, किसी की ड्यूटी लगाना, राइट। सो दिस इज द वर्ड डिप्लॉय। डिप्लॉय इज द वर्ब and deployment is the noun. This means to assign duty, तैनात करना। जैसे आपने कहा कि उन्हें बॉर्डर पे तैनात किया गया है, तो डिप्लॉयमेंट वर्ड इज वेरी वेरी कॉमन कि उनका डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है। टू शोकेस, शोकेस का मतलब है प्रदर्शन करना, किसी चीज को दिखाना। This is showcase, to show off, प्रदर्शन करना। एंड शोकेस वर्ड अपने आप में ही वेल डिफाइंड है, शो प्लस केस, राइट। इट्स अचीवमेंट्स, उपलब्धियां अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में, डाउन टू द विलेज लेवल, गांव तक उनको हमें दिखाना है। थ्रू के माध्यम से, अ रोड शो टाइटल्ड, उसका टाइटल, उसका नाम दिया गया है विकसित भारत संकल्प यात्रा, विच विल रन फ्रॉम नवंबर 28 टू जनवरी 25, 2024। टू बी श्योर, द आउटरीच, आउटरीच वर्ड
कैन बी अंडरलाइंड। आउट रीच दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, आउट बाहर, रीच पहुंच, राइट। तो यहाँ पे इसका जो मीनिंग आ रहा है कि द आउटरीच इज only about achievements of the last 9 years that corresponds to the two term of Bharatiya Janata Party that began in 2020 2014। सो इसका जो सिंपल मीनिंग आ रहा है कि यह जन संपर्क अभियान सिर्फ पिछले 9 सालों की उपलब्धियों से संबंधित है। करस्पॉन्ड का मतलब होता है संबंध रखना, जो 2014 में शुरू हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 2 कार्यकालों को करस्पॉन्ड करती है, उनसे कनेक्टेड होती है। तो यहाँ पे आउटरीच वर्ड को अंडरलाइन कर लेते हैं, आउटरीच। सो आउटरीच मीन्स पहुंच, जो उनका एक सर्टेन एक्सेस है। तो इस यात्रा का जो आउटरीच है वो मेनली यही है कि बीजेपी के 2 जो कार्यकाल हैं उनमें उनके क्या अचीवमेंट्स रहे हैं, सो उनको हाईलाइट करना। आउटरीच एज अ वर्ब भी यूज़ होता है और एज अ नाउन भी होता है, यहाँ पे एज अ नाउन यूज़ हो रहा था। आउटरीच मीन्स एक्सेस, वी कैन सिंपली से पहुँच, उसकी पहुँच कहाँ तक है। सो वी कैन सिंपली कनेक्ट इट विद द वर्ड्स आउट एंड रीच, आउटरीच। एंड करस्पॉन्ड वर्ड मतलब किसी चीज़ से संबंध रखना, किसी चीज़ से मेल खाना, दैट इज अ वर्ड करस्पॉन्ड। एंड करस्पॉन्डेंस मतलब पत्र व्यवहार करना। सो करस्पॉन्ड इज मैच, correspond means it's a verb to match। जैसे आपने कहा कि ये मेरे से मेल खाता है, so this corresponds to is। and correspondence word is very very common, पत्र व्यवहार, correspondence। so through mail correspondence we will get to know, ऐसा अक्सर आपने सुना होगा। is only achievements of the last 9 years that corresponds to the two term, 2 जो कार्यकाल हैं बीजेपी के, उनके जो कि 2014 में शुरू हुई थी, उनके कार्यकाल को दिखाना है। कैंपेन प्रचार है, कैंपेन वर्ब के रूप में भी यूज़ होता है और कैंपेन नाउन के भी रूप में यूज़ होता है। तो कैंपेन में ये जो आपका जी है ये साइलेंट रहता है, दिस इज यूज्ड एज अ वर्ब ऑल्सो, एज अ नाउन ऑल्सो। कैंपेन मीन्स टू एडवर्टाइज, प्रचार करना। सो कैंपेन को हम कैंप से रिलेट कर सकते हैं, कई बार कैंप लगा करके हम प्रचार करते हैं। द कैंपेन इज कन्वीनियंटली, आराम से, ठीक है, कन्वीनियंट से बना है, कन्वीनियंटली। सो आप इन शब्दों को समझें। कन्वीनियंट इज एडजेक्टिव, जैसे आप कहते हैं दिस इज कन्वीनियंट टू मी। कन्वीनियंस इज नाउन, एज पर योर कन्वीनियंस। and conveniently is the adverb। so convenient means comfortable, आरामदायक। so जो भी convenient timings हो। timed for the Lok Sabha election which is expected in April May 2024। अप्रैल मई में 2024 में जो लोकसभा इलेक्शन होने जा रहे हैं उनके हिसाब से ये कैंपेन हो रही है, उनको उसमें सक्सेस पाने के लिए कैंपेन हो रही है। ज्वाइंट सेक्रेटरीज, डायरेक्टर्स एंड डिप्यूटी सेक्रेटरीज विल बी अपॉइंटेड रथ प्रभारीज। रथ को हम चैरियट कहते हैं, राइट। सो चैरियट इज बेसिकली योर रथ, यू मस्ट हैव heard about it, this is chariot, this is coming as a noun, this means रथ। for the road show separately, अलग से, the Ministry of Defense is setting up 822 सेल्फी पॉइंट्स। 822 सेल्फी पॉइंट्स भी सेटअप किए जा रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा, वेयर सिटीजन्स कैन क्लिक देमसेल्व्स विद द पिक्चर ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। उनके साथ वो फोटो क्लिक कर सकते हैं। गाइडलाइंस इशूड बाय द मिनिस्ट्री गो इनटू ग्रेट डिटेल्स ऑन हाउ टू प्रमोट द वर्क ऑफ द लास्ट 9 years। पिछले 9 सालों का वर्क कैसे प्रमोट हो, इसके लिए गाइडलाइन भी इशू की गई है मिनिस्ट्री के द्वारा। इट हैज़ बीन डायरेक्टेड दैट सेल्फी पॉइंट्स शुड बी सेटअप एट प्रोमिनेंट लोकेशंस। प्रोमिनेंट का मतलब है जो फेमस लोकेशंस हैं। सो हम इस पैसेज से ये प्रोमिनेंट वर्ड भी ले सकते हैं, प्रोमिनेंट। और मैं आपको बता दूं प्रोमिनेंट यहाँ पे एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहा है,
एंड इसी से बना है प्रोमिनेंस, दैट विल कम एज अ नाउन, एंड प्रोमिनेंटली दिस विल कम एज एन एडवर्ब. सो प्रोमिनेंट मतलब इम्पॉर्टेंट, जो महत्वपूर्ण जगह है, राइट. दिस इज महत्वपूर्ण, प्रोमिनेंट. एंड प्रोमिनेंट को रिलेट कर सकते हैं प्रोमो से. प्रोमो कोड आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. विच है मैक्सिमम फुटफॉल, जहां पे लोगों का ज़्यादा आना जाना हो. फुटफॉल वर्ड भी आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स में ला सकते हैं, बहुत ज़्यादा यूज होता है. देर इज ह्यूज फुटफॉल एंड पब्लिक अटेंशन को हम अट्रैक्ट कर सकते हैं. वॉर मेमोरियल्स, डिफेंस म्यूजियम्स, रेलवे एंड मेट्रो स्टेशन, बस स्टेशन, एयरपोर्ट्स, मॉल्स एंड मार्केट प्लेसेस, schools and colleges, tourist destinations and festival gathering are the places where these points are coming up. अपोजिशन जो विरोध में है, उन पार्टीज जो कि प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा उन्होंने गवर्नमेंट को कॉल आउट किया है. अब ये कॉल आउट को हम ले सकते हैं अपने लर्निंग में. सो व्हाट मीनिंग ऑफ कॉल आउट इज देयर, ये फ्रीज है, फ्रीज के रूप में यूज हो रहा है. कॉल आउट का मतलब है इस चीज को स्टॉप करने के लिए कहना, किसी चीज को बंद करने के लिए कहना, दैट इज कॉल्ड कॉल आउट. सो दिस इज कॉल आउट टू आस्क समवन टू स्टॉप समथिंग. दिस इज कॉल्ड कॉल आउट, काम बंद करने के लिए कहना. और वैसे कॉल आउट का मतलब होता है सहायता के लिए बुलाना भी, किसी को हेल्प के लिए बुलाना भी होता है कॉल आउट, राइट. द गवर्नमेंट, दिस ब्राजन, ब्राजन का मतलब होता है शेमलेस, जिसमें बेशर्मी की हद हो गई है. सो दिस इज कॉल्ड ब्राजन. ब्राजन वर्ड यहाँ पे एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहा है, और दिस इज कॉल्ड बेशर्मी, राइट. ब्राजन वर्ड आसानी से आप लर्न कर सकते हैं. पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द ब्यूरोक्रेसी एंड द मिलिट्री, मिलिट्री और ब्यूरोक्रेसी का जो राजनीतिकरण हो रहा है उसको बंद करने के लिए अपोजिशन ने इसकी चर्चा की है और इसको बंद करने के लिए कहा है. आई होप आपको पैसेज का मीनिंग भी समझ में आ गया होगा, पैसेज को रीड कैसे करना है, पंक्चुएशन कैसे फॉलो करना है, ये भी समझ में आ गया होगा, और ये आपने पैसेज कंप्लीट किया. सो इसी तरह से स्टे ट्यून्ड विद अस. अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो डू सब्सक्राइब. एंड लेट मी टेल यू, दिस इज आवर Telegram group. You can find us on Telegram as well. Simply you can go here and you can definitely find our in more information about our course also. अगर आप अपना spoken English improve करना चाहते हैं, so you can join and you can call at this number. We have basic grammar, vocabulary building, pronunciation, accent training, certificate course it is. You will be given certificate of completion also. So आप अपने comments ज़रूर शेयर करिएगा, कैसा लगा आपको ये सेशन. साथ ही साथ अपनी राय इस पर्टिकुलर मैटर के बारे में ज़रूर शेयर करिएगा. आपका दिन शुभ हो. जय हिंद.